have discussed face milling. So when we say peripheral mill cutter, we'll be discussing slab milling. If at all the objective is to remove some material from the surface of the workpiece. So now here the peripheral mill cutter is the tool, the horizontal milling machine is the machine, and the slab milling is the process. So now here there are three different things to operate with. So now let's say this is a peripheral mill cutter, and this peripheral mill cutter is to be used to remove a layer of material from the surface of the workpiece, and this is the work table. Okay, so I'll name it as work table, and this is the workpiece. Now as you can see from the diagram itself that the cutter will be able to remove some depth of cut will be introduced. So this is D, that is depth of cut. And if this work table traverses towards the workpiece, towards the cutter, and the cutter has a counterclockwise direction such that the tangential direction, the tangential velocity of the cutter is towards right, and the work table's movement is towards left, then this will be the case of up milling operation. So the slab milling operation is subdivided or subcategorized into up milling and down milling. So in up milling, what will happen? The direction of the cutter and that of the workpiece will be opposite to each other. In down milling, the direction of the cutter and the workpiece will be same. तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया एक ऑपरेशन जिसका नाम है अप मिलिंग. तो इस अप मिलिंग ऑपरेशन और डाउन मिलिंग ऑपरेशन स्लैब मिलिंग के ही दो पार्ट्स हैं, ठीक है, दो कैटेगरीज हैं. तो हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है. अभी फिलहाल आप ये जान लो कि ये जो पेरिफेरल मिल कटर है ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल से कंट्रोल होता है. तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये है सेंट्रल आर्बर, ठीक है, और इस सेंट्रल आर्बर से कनेक्टेड है कटिंग टूल, जो कि एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है. So as you can see that we have a cutter of this milling category which has altogether 6 teeth. Okay, now this particular cutter will be machining another workpiece. So I'll draw the workpiece here. Now this is the workpiece. अब ध्यान से देखो कि जो कटिंग टीथ है उसका डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज. मतलब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो डायरेक्शन है कटिंग वेलोसिटी का, टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, और मान लेते हैं वर्क टेबल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. तो ये हो गया कौन सा ऑपरेशन? ये हो गया अप मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है. और अगर हमारे पास ये सिचुएशन ऑपोजिट रहता, मान लो ये आर्बर है, ठीक है, ये आर्बर होता क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आर्बर. इट इज द shaft on which cutter is mounted. Shaft on which cutter is mounted. So I have written it here. Now this is the arbor, and now we have a cutter which will have its movement in the direction of the workpiece. So first of all, let me draw the cutter. So this is a multi-point cutting tool, as you can see, and the direction of rotation is counterclockwise.
the direction of the workpiece towards left, then the direction of the cutter, the tangential direction at the point of contact will be towards right. The second point. The second point is that the surface finish will be poor. ओके कोई दिक्कत. Third point, wear will be high. So the workpiece will be striking the cutter from the front, and the cutter will be also moving in the opposite direction, so the impact will be more, and therefore we say that the tool wear will be high in this arc milling operation. Okay, the fourth point. The fourth point is the cutter tends to lift the workpiece above the table. Okay, so now we say that when this particular tooth meshes with the workpiece, so now the cutter will try to lift the workpiece above the table, so therefore we need to go for a strong clamping. So there has to be a strong support provided to the workpiece, and the work table must hold the workpiece in a proper manner, so that the cutter must not lift the workpiece above the table. So the fifth point will be strong clamping. Strong clamping will be required. तो मजबूती से जकड़ के रखना पड़ेगा वर्कपीस को, अदरवाइज कटर उसको उठा के ऊपर लेके चला जाएगा. लेकिन यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं, एज यू कैन सी द क्लैंप्स, अगर हम मजबूती से पकड़ के रखते हैं तो कटर उसको ऊपर नहीं उठा पाएगा. और वर्कपीस को स्टेबल तो रहना ही चाहिए ना, वर्कपीस को अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मशीनिंग प्रॉपर्ली कैसे हो पाएगा. अच्छा, अब जाके यहाँ पर देखो कि धीरे 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 ये चिप थिकनेस बढ़ेगा. इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी 6 पॉइंट. ठीक है, दैट द चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. ठीक है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा. ये क्या है, देखो एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये यहाँ पर लिख दो ए है और ये है बी. हम ऐसा मानते हैं कि जो कटर है वो तो अपने आर्क के अलोंग मूव कर रहा है, तो वो अपने आर्क के अलोंग कहाँ कहाँ तक टच करेगा, ए से टच करता हुआ बी तक जाएगा. लेकिन आप ये सोचो कि वर्कपीस अपनी जगह पे स्थिर तो है नहीं. बाय द टाइम द कटर रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द वर्कपीस विल बी आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द कटर. तो जो इफेक्टिव पेनिट्रेशन होगा वो बी डैश तक होगा, क्योंकि बाय द टाइम द कटर इज मूविंग टुवर्ड्स its own arc, it's moving along its own arc, the workpiece is moving towards the cutter. तो जो workpiece है वो cutter के करीब आ रहा है, तो effective meshing जो है ना वो ज्यादा होगा, जो penetration है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे. तो इसीलिए हम कहते हैं कि chip thickness varies from minimum to maximum. पहले कम होगा at the point A, it will be minimum. तो at point A मिनिमम चिप थिकनेस क्या है, जस्ट टच किया है 0, अभी तो शुरुआती हुई है. अच्छा, एट पॉइंट बी डैश, आई कैन से एट पॉइंट बी डैश द चिप थिकनेस इज मैक्सिमम, और इस वैल्यू को लिखते हैं 2fm अपॉन nz रूट ओवर स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. तो व्हाट इज n? n क्या है यहाँ पर, n इज rpm, और fm क्या है, दिस इज द मिलिंग फीड इन mm पर मिनट. फिर ये स्मॉल d क्या है, दैट इज डेप्थ ऑफ कट. ठीक है, z क्या है, नंबर ऑफ टीथ, और कैपिटल D क्या है, डाया ऑफ कटर. तो आपको यहाँ से क्या समझ आया, मैक्सिमम चिप थिकनेस का इक्वेशन मिला आपको. तो मैक्सिमम चिप थिकनेस इज ट्वाइस ऑफ मिलिंग फीड अपॉन nz रूट ओवर स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. मिनिमम चिप थिकनेस इज इक्वल टू 0. एवरेज चिप थिकनेस को लिखते हैं मैक्सिमम चिप थिकनेस प्लस मिनिमम चिप थिकनेस डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो मिनिमम चिप थिकनेस तो 0 है, तो एवरेज चिप थिकनेस क्या हो जाएगा, एवरेज चिप थिकनेस विल बी T maximum डिवाइडेड
स्लैब मिलिंग में दो पार्ट है, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। तो अप मिलिंग में क्या देखा आपने पहले, तो कौन सा मशीन काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ कटर एंड वर्कपीस विल बी ऑपोजिट, ठीक है। सरफेस फिनिश पुअर होगा, ठीक है। टूल वियर विल बी हाई, कटर टेंड्स टू लिफ्ट द वर्कपीस अबव द टेबल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग विल बी रिक्वायर्ड एंड चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, सो दिस वाज अबाउट द आप मिलिंग ऑपरेशन। यहाँ पर कई बच्चों को डाउट होगा सर ये टूल वियर ज्यादा क्यों हो रहा है। टूल वियर ज्यादा इसलिए हो रहा है भैया क्योंकि वर्कपीस सामने से आ रहा है और टूल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से टूल वियर होगा ज्यादा। और अगर इम्पैक्ट से अगर आप इम्पैक्ट शेयर करेंगे तो इम्पैक्ट शेयर में सरफेस फिनिश थोड़ा सा पुअर होता है, ग्रेजुअल शेयर में थोड़ा सरफेस फिनिश बेटर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप मिलिंग में जो हमारा मटेरियल रिमूवल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस गो फॉर द डाउन मिलिंग ऑपरेशन। तो डाउन मिलिंग में मैं फिर से एक कटर बनाता हूँ। यहाँ पर ये आर्बर है शाफ्ट जिसमें कि कटर माउंटेड रहता है, और ये यहाँ पर मैंने बनाया कटर, और यहाँ से मैं कटर प्लॉट कटिंग टीथ प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस, this workpiece is placed on the work table, and the work table if moves towards right, and since this cutter has a counterclockwise direction, तो इसका टेंजेंशियल जो मूवमेंट होगा वो टेंजेंशियल मूवमेंट टुवर्ड्स राइट होगा। तो यहाँ पर देखो कि ये होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द कटर एंड दैट इज टुवर्ड्स राइट, और वर्क टेबल का भी डायरेक्शन दैट इज आल्सो टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये जो डाउन मिलिंग ऑपरेशन है इसमें पहली बात तो डायरेक्शन दोनों का बराबर रहता है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ कटर एंड वर्कपीस विल बी सेम, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर डायरेक्शन सेम है तो व्हाट विल बी द कमेंट अबाउट टूल वियर, टूल वियर विल बी लो, चलो अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट ये लिख लिया कि भैया अगर इम्पैक्ट नहीं है तो सरफेस फिनिश विल बी बेटर, ठीक है, बेटर देन आप मिलिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया मैंने दैट द कटर tends to push the workpiece towards the table, the cutter tends to push the workpiece towards the table। अभी इससे पहले क्या दिखा था, lift the workpiece above the table। अब इस बार देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो इम्पैक्ट है नहीं, तो क्या करेगा कटर वर्कपीस को टेबल की तरफ पुश करेगा। ओके, मूविंग अहेड, फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या होने वाला है अब, दैट इज चिप थिकनेस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे सभी लोग, ये पॉइंट ले लो ए डैश, ठीक है। यहाँ पर चिप थिकनेस सबसे ज्यादा है, धीरे धीरे चिप थिकनेस कम होता गया एट द पॉइंट बी, ठीक है। तो ए डैश में आपको क्या दिखेगा, टी मैक्स, बी पॉइंट पे क्या दिखेगा, टी मेन। फॉर्मूला इन दोनों का आपको पता ही है, ठीक है। अभी आप ये सोचो कि मैक्सिमम चिप थिकनेस से मिनिमम की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि कटर का डायरेक्शन और वर्कपीस का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो जैसे जैसे कटर टेंजेंशियली, मतलब कटर का मतलब मैं इस टीथ के बारे में बात कर रहा हूँ, लुक एट दिस पर्टिकुलर टीथ, दिस वन। तो ये जो टूथ
टूथ जब आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो वर्क पीस भी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे वर्क पीस जो है ना कटर से दूर जा रहा है, तो इसीलिए जो थिकनेस है वो मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है। आप बिल्डिंग में क्या हो रहा था, धीरे धीरे जैसे कटिंग प्रोग्रेस हो रहा था तो उस तरीके से जो वर्क पीस है वो कटर के नजदीक आ रहा था। इस बार कटर जो है जो वर्क पीस है वो कटर से दूर जा रहा है धीरे धीरे, तो पहले जो आपको मिल जाएगा थिकनेस वो मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे थिकनेस कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम टू मिनिमम इस बार गाड़ी आएगी, फॉर्मूला वही रहेगा मैक्सिमम चिप थिकनेस का, that is 2fm upon nz root over small d upon capital D. Okay, so the other two strong categories of slam milling, that is one is up milling and another is down milling. Both are governed by horizontal milling machine, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है दैट इज हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर एक तो हो गया मैक्सिमम मिनिमम चिप थिकनेस का फॉर्मूला। अब अगर मशीनिंग टाइम के बारे में बात करें तो मशीनिंग टाइम में क्या होगा, आपको कंपलसरी अलाउंस निकालना पड़ेगा जैसे कि आपने हर केस में निकाला था। तो ये मान लो हमारे पास एक कटर है और ये है हमारा वर्क पीस, तो मैंने कंपल्सरी अलाउंस वर्क पीस का टॉप सरफेस बनाया और इस वर्क पीस में ये वर्क टेबल है, मैं यहाँ पे शेड चिरेंद्र कर रहा भाई हूँ वर्क टेबल को। अब ये वर्क टेबल मान लो कटर के रोटेशनल डायरेक्शन के ऑपोजिट ट्रैवल कर रहा है, तो ये मान लो आप मिलिंग ऑपरेशन है। अब हमें यहाँ पर कंपलसरी अलाउंस निकालना है, तो वो कंपलसरी अलाउंस कैसे मिलेगा, तो देखो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द डेप्थ ऑफ कट। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही ये कटर आगे बढ़ेगा, जैसे ये देखो ये कटर धीरे धीरे ये कटर अपनी जगह पे ही है, मान लो ये वर्क पीस को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे लेके गया, ये आगे बढ़ता जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी दैट द कटर हैज रीच्ड द कॉर्नर ऑफ द वर्क पीस। यहाँ देखो ध्यान से, क्या आप बोलेंगे मशीनिंग कंप्लीट हो गई है? नहीं, आप नहीं बोल सकते कि मशीनिंग कंप्लीट हो गई है, क्यों, क्योंकि अभी भी कुछ पोर्शन है, लुक एट दिस पोर्शन, अभी भी कुछ पोर्शन है जिसे मैंने येलो से मार्क किया है जो कि मशीन नहीं हुआ है। स्टिल देयर आर सम मटेरियल yet left out to be removed। तो अब जाके क्या होगा, जब ये वर्क पीस थोड़ा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तब जाकर मैक्सिमम जो कंप्लीट डेप्थ ऑफ कट है वो मिल पाएगा। तो जब वर्क पीस का कंप्लीट डेप्थ ऑफ कट हम अचीव कर चुके होते हैं, उस समय जो कटर आगे निकलता है उसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस या कंपलसरी अलावेंस। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ चीजें कि कंपलसरी अलावेंस है क्या। स्लैब मिलिंग में कंपलसरी अलावेंस क्या है? कंपलसरी अलावेंस इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड वही है यार वो cutter सस्पेंस or सस्पेंस workpiece भाप ले in पूरे order साले घड़ा घाटी में निकाल के फेंकना पड़ेगा, बस वही है बाकी maximum सब सही है। depth of cut। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट अगर कटर ने अचीव कर लिया तो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया उसके लिए, दैट इज द कंपलसरी अलाउंस। जैसे मान लो कि अभी ये कटर का सेंटर ये है, इसको मान लेते हैं O1, ठीक है। आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ये जो कटर है उसने अब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट अचीव कर लिया, लेकिन अब इसका जो सेंटर है वो अब थोड़ा आगे आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसका नाम दूंगा O2। तो ये जो O1 से लेकर O2 तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज द कंपलसरी अलाउंस। तो ये O1 से O2 तक का डिस्टेंस को क्या हम बोलेंगे, कंपलसरी अलाउंस। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस चीज को। ये मैंने कटर बनाया और ये है सेंटर, ठीक है। ये यहाँ पर वर्क पीस यहाँ तक पहुंचा है, अभी मैंने यहाँ पर वर्क पीस बना दिया। भरोसा रखो, विश्वास रखो। ये है हमारा वर्क टेबल, ध्यान से देखो। अच्छा अब मुझे बताओ कि
मशीनिंग कंप्लीट हो गई है क्या? तो आप बोलेंगे सर मशीनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी भी ये पोर्शन मशीन होना बाकी है, दिस वन, ये वाला पोर्शन मशीन होना बाकी है। अभी इस पोर्शन पे मशीनिंग कब होगा? जब मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट अभी हमने अचीव किया नहीं है, तो जब सर के ऊपर लॉन्गेस्ट कॉर्ड आएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द diameter. When the longest chord of the circle will participate in the machining, then we will achieve the maximum depth of cut. तो longest chord is diameter. तो diameter को मैदान में लाया जाए तो धीरे 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 मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये आगे बढ़ता है और अब जाके आपको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये मान लो O1 है और ये मान लो O2 है, ठीक है? ये दिस विल बी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट। तो देखो मैंने कटर को मूव करा है, प्रैक्टिकली कटर मूव नहीं हो रहा है, वर्कपीस मूव हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हम इस वेलोसिटी को बोलेंगे टेबल स्पीड या टेबल फीट। तो ये O1 O2 और इसको मार्क कर लो एज A, ठीक है? इसको मार्क कर लो B। आपको समझ में आ गया ना O1 O2 क्या है? कंपल्सरी अलावेंस, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द वर्क टेबल आफ्टर व्हिच मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट विल बी अचीव्ड। और हम कह सकते हैं द कटर is moving an extra distance after which the maximum depth of cut is achieved, और हम बोलेंगे मशीनिंग कंप्लीट हो गया। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट कौन काट सकता है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, दैट इज द डायमीटर। तो आप देखो कि AB के ठीक ऊपर क्या है? सेंटर है। AB अगर सेंटर के लाइन में है, इसका मतलब कि डायमीटर के लाइन में वो है। और AB मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट हमें मिल गया when the center is right at the top of AB, ठीक है? तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ये भी आप लिख सकते हैं, let this be C, let this be D। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ O1 O2 is nothing but equal to CD। तो अभी CD तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन O1 O2 निकाल सकते हैं सेंटर को कनेक्ट करके। अब O1 O2 को लिखा जाएगा रूट ओवर O1A होल स्क्वायर माइनस O2A होल स्क्वायर। O1A क्या है? D/2। O2A क्या है? दैट इज O2B माइनस AB। व्हाट इज O2B? D/2। व्हाट इज AB? डेप्थ ऑफ कट। तो यहाँ पर O1 O2 को लिख सकते हैं रूट ओवर O1A की जगह पे क्या लिखेंगे? D/2 होल स्क्वायर माइनस O2 A की जगह पे क्या लिखेंगे? D/2 माइनस डेप्थ ऑफ कट होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट इज रूट ओवर स्मॉल d कैपिटल D माइनस स्मॉल d। दैट इज द कंपल्सरी अलाउंस इन द स्लैब मिलिंग ऑपरेशन। तो ये हो गया कंपल्सरी अलाउंस जब भी हम पेरिफेरल कटर इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम पेरिफेरल कटर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो कंपल्सरी अलाउंस होगा वो यही होगा, दैट इज रूट ओवर डेप्थ ऑफ कट कैपिटल D माइनस स्मॉल d, ठीक है? और इस कंपल्सरी अलाउंस को आप कहाँ ऐड करेंगे? जाहिर सी बात है लेंथ ऑफ द वर्कपीस में ये कंपल्सरी अलाउंस ऐड होगा, ठीक है? तो आप समझ जाना क्वेश्चन में केस कौन सा है। एंड मिल कटर का केस कब होगा? जब क्वेश्चन में लिखा होगा वर्टिकल मिलिंग मशीन। जब हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन लिखा होगा या स्लैब मिलिंग लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये केस पेरिफेरल मिल कटर का है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं जिससे कि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है गेट 2 मार्क्स, तो उसमें लिखा है इन स्लैब मिलिंग operation, in slab milling operation, the dia of cutter used is 34 mm and depth of cut is 2 mm.
ये देखो कि इस क्वेश्चन में कौन सा मिलिंग लिखा है, तो आप बोलेंगे सर स्लैब मिलिंग लिखा है, क्वाइट सिंपल है। तो स्लैब मिलिंग लिखा है, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले कंपलसरी अलाउंस निकालो। व्हाट विल बी द कंपलसरी अलाउंस, मैं लिखूंगा x दैट इज रूट ओवर d कैपिटल D माइनस स्मॉल d। तो डेप्थ ऑफ कट क्या है, डेप्थ ऑफ कट इज 2, यहाँ लिख दिया 2। कैपिटल D क्या है, कैपिटल D इज 34 mm, लिख दिया 34 माइनस फिर 2 और ये रूट ऊपर, तो 34 माइनस 2 इज 32 into 2 64, रूट ओवर 64 इज इक्वल टू 8 mm। तो 8 mm कंपलसरी अलाउंस हो गया। अब यहाँ पर बहुत ही मजेदार पॉइंट लिखा है कि ओवर ट्रैवल एंड अप्रोच टू बी द सेम, मतलब कौन सा वाला अप्रोच, कभी कौन से वाले अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, कोई अप्रोच एक्स्ट्रा गिवन है क्या, नहीं, इसका मतलब वो कंपलसरी अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपलसरी अप्रोच कितना आया 8 mm, ओवर ट्रैवल भी कितना हो जाएगा 8 mm लिखा है ना, दैट अप्रोच एंड ओवर ट्रैवल टू बी द सेम। तो अब जाकर मशीनिंग टाइम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द वर्कपीस 200 में 8 और 8 जोड़ दो डिवाइडेड बाय टेबल फीट दैट इज 18, क्वेश्चन में मेंशन्ड है 18 mm पर मिनट, तो 216 डिवाइड बाय 18, सो दैट विल बी 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, केवल एक ही बार लेंगे, नहीं एक बार नहीं 2 बार लेना है। जब भी ऐसा लैंग्वेज होगा कंसीडर अप्रोच एंड ओवर ट्रैवल टू बी सेम, तो आप क्या करेंगे, मशीनिंग टाइम को 2 बार इंक्लूड कर, सॉरी कंपलसरी अप्रोच को 2 बार लेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था पेरिफेरल मिल कटर के ऊपर। और देख लेते हैं मजेदार मजेदार क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे वर्कबुक में, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि जो स्लैब मिलिंग ऑपरेशन है, इन स्लैब मिलिंग ऑपरेशन, इन स्लैब मिलिंग ऑपरेशन डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट और चिप थिकनेस के बीच में एक रिलेशन है। सो आई विल जस्ट टेल यू द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। लिखा है यहाँ पर कि इन स्लैब मिलिंग लिखा है टू separate slab milling operations 1 and 2 are performed with identical milling cutters, लिखा है are performed with identical milling cutters। The depth of cut in operation 2 is twice that in operation 1। Okay, so D2 is twice of D1 that in operation 1। The other cutting parameters are identical। The ratio of uncut chip thicknesses in operation 1 and 2 is dash। ठीक है, so that's a gate numerical। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है कि आप ये समझ जाए कि D2 is twice of D1। अच्छा, स्लैब मिलिंग ऑपरेशन है, इसमें चिप थिकनेस का आपको फॉर्मूला क्या बताया, 2Fm अपॉन NZ रूट ओवर स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अच्छा, अगर दोनों कटर सेम है तो मिलिंग फीड, RPM, नंबर ऑफ टीथ ये सब बराबर होगा। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और डाया कटर भी बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि T1 is proportional to root over D1 and T2 is proportional to root over D2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब एक काम करो कि ये जो D2 है, इसमें जो D2 है इसको twice of D1 लिख लो। अब एक इक्वेशन ये पकड़ लो, इक्वेशन ये पकड़ लो और लिख दो T1 अपॉन T2। तो T1 अपॉन T2 को क्या लिखेंगे, इस बार लिख देंगे रूट ओवर D1 अपॉन ट्वाइस ऑफ D1, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 2 दैट इज 0.707। सो दिस इज द चिप थिकनेस रेशियो। अभी देखो यहाँ पर अनकट लिखा है, तो इस अनकट से घबराने का नहीं, अनकट का मतलब एनालिसिस जो है वो काटने से पहले किया जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 इज
रूट ओवर 1/√2 एंड द आंसर इज 0.707। तो हमने ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर चिप थिकनेस का जो इक्वेशन था। तो ये हमने स्लैब मिलिंग में देखा था, मैक्सिमम चिप थिकनेस का ये इक्वेशन था, ठीक है। अगर एवरेज का भी लेते तो क्या होता, ये 2 नहीं होता, बाद बाकी पैरामीटर्स तो सेम ही रहने वाले थे। अब लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। Okay, so now let's go for various questions in the workbook. So here we have question number 24. So in question number 24, it says that a slot is to be made, a slot is to be made on a milling machine with the help of peripheral cutter. तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है peripheral cutter, ठीक है। फिर लिखा है revolving at 120 rpm, ये लिखा है। Find the time required to prepare the slot in 2 cuts. Time to prepare the slot in 2 cuts. तो 2 cuts में हमें मशीनिंग करना है, that is number of pass equal to 2. If it is 2 centimeter deep, 2 centimeter deep slot हमें कट करना है and 10 centimeter long. So the slot is 10 centimeter long and then it says the cutter diameter is 8 centimeter. The cutter diameter is 8 centimeter. Assume feed as 0.5 mm per revolution and neglect over travel and assume clearance at exit. So you can take it as 0.5 centimeter. Okay, so this is the allowance at exit. Allowance at exit. Okay, so now let's go for the machining time calculation. हमें time निकालना है. We need to find out the machining time. So now let us go for the calculation of x first. तो x क्या हो जाएगा, root over d capital D minus small d. तो डेप्थ ऑफ कट क्या लेंगे, देखो 2 सेंटीमीटर डीप स्लॉट क्वेश्चन में मेंशन्ड है, लेकिन कितने कट्स में, 2 कट्स में। तो एक कट में कितना डेप्थ ऑफ कट अचीव होगा, 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में एक कैच है जो आपको ध्यान से समझना है। सो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा, बच्चे 2 सेंटीमीटर लिख के आएंगे, गलत हो जाएगा। 2 स्लॉट 2 कट में, मतलब 2 पास में अगर 2 सेंटीमीटर मिल रहा है तो एक पास में 1 सेंटीमीटर मिलेगा। तो 8 minus 1, so root over 7. तो कैलकुलेट कर लेते हैं, what is root over 7? So root over 7 is equal to 2.64 centimeter. Okay, machining time, what is the length of the workpiece, that is 10 centimeter. So 10 plus 2.64 plus 0.5 centimeter is the allowance at exit, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 0.5 mm पर रेवोल्यूशन गिवन है, हम लिखेंगे इसको 0.05 सेंटीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो 0.05 और आरपीएम ठीक है भैया, एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 120। तो हमने बेसिकली लिया क्या, LE अपॉन FN ऐसा लिखा है, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि 2 पास में हो रहा है, तो नंबर ऑफ पास इक्वल टू 2, तो 2 से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पास, दिस इज नंबर ऑफ पास, ठीक है। सो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द मशीनिंग टाइम, 2.19 into 2, so we'll get as 4.38 minutes. So that is the machining time in this question number 24. Okay, now let's go for another question. तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हमने प्रोड्यूस किया है स्लॉट। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड स्लॉट मिलिंग यूजिंग पेरिफेरल कटर। तो जो हमारे पास पेरिफेरल कटर है उससे हमने क्या किया, हमने उससे स्लॉट कट किया, राइट। तो दिस इज द स्लॉट दैट वी हैव, ठीक है, ये यहाँ पर स्लॉट प्रोड्यूस हुआ है। This is the slot that is produced, okay, by this milling cutter. So this slot milling process
75 में लिखा इन स्लैब मिलिंग ऑपरेशन फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्जर्व। क्या डेटा हियर गिवन है? डाया ऑफ कटर इज 90 mm। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है स्लैब मिलिंग ऑपरेशन, फिर लिखा है डाया ऑफ कटर इज 90 mm, नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 10, कटिंग स्पीड इज 30 मीटर पर मिनट, टेबल फीड मेंशन है 180 mm पर मिनट, फिर लिखा है डेप्थ ऑफ अनकट इज 3 mm, फिर लिखा है कैलकुलेट मैक्सिमम एंड एवरेज चिप थिकनेस, ये निकालना है अपने को। ओके, तो अगर मैक्सिमम चिप थिकनेस के बारे में बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 2fm अपॉन nz रूट ओवर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। n की वैल्यू क्या है? v क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय पाई इनटू d। v क्या है? कटिंग स्पीड दैट इज 30 क्रॉस 1000 डिवाइड बाय पाई, डायमीटर कितना है? 90। अच्छा, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट 106.1 rpm। तो ये यहाँ पर प्लेस कर देंगे हम, ट्वाइस ऑफ एफएम फीड वेलोसिटी इज टेबल फीड इज 180, आरपीएम 106.1, नंबर ऑफ टीथ कितना गिवन है? 10, डेप्थ ऑफ कट कितना गिवन है? 3 डिवाइड बाय डाया 90। यहाँ पर अनकट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अनकट लिखा है इसका मतलब जो एनालिसिस है वो काटने से पहले की जा रही है, दैट्स इट। तो उसको सॉल्व किया हमने, व्हाट वी ऑब्टेन्ड वाज 0.062 mm। ठीक है, अगर मैक्सिमम चिप थिकनेस मिल गया है तो एवरेज का तो पता ही है आपको, दैट इज मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.031 mm। ओके, सो दैट इज द average chip thickness and the maximum chip thickness. So let's go for another question। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें टाइम पूछा गया है और अप्रोच अलाउंस पूछा गया है। दैट्स अ गेट 2 मार्क क्वेश्चन, आई विल राइट हियर। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में मेंशन है द लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ स्टील सैंपल आर 400, 40 एंड 20। तो लेंथ इज 400 mm, width is 40 mm and thickness is 20 mm, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। और ये है क्वेश्चन गेट 2019 का और वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 16। फिर लिखा है that its thickness needs to be uniformly reduced by 2 mm in a single
understood the application of the slab milling and the application of face milling. तो अभी तक हमने दो कटर देखा है. कौन कौन सा दो कटर है वो? एक देखा है एंड मिल और एक देखा है पेरिफेरल. ठीक है, पेरिफेरल मिल कटर. सो एंड मिल कटर एंड पेरिफेरल मिल कटर, ये दो कटर हमने देखा है. अब आने वाले कटर्स को ध्यान से देखते हैं. तो अब मैं कुछ और कटर्स यहाँ पर बनाने वाला हूँ. जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाया एक कटर जिसका नाम है साइड मिल कटर. दिस इज साइड मिल कटर. So as you can see, side mill cutter is rotated about which axis? Rotational axis. And this rotational axis is horizontal. So this is our side mill cutter. तो ये कौन सा कटर है? इसे मैं बोलूंगा साइड मिल कटर. ठीक है, दो साइड मिल कटर को अगर मैंने कंबाइन कर दिया एक साथ, जैसे एक साइड मिल कटर ये है और कॉमन स्पिंडल में एक और साइड मिल कटर लगा दिया, तो ऐसे केस में जो कटर हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रैडल मिल कटर. दिस इज द one side mill, this is another side mill. Now they are connected together. Since they are connected together, so they will be able to cut two surfaces at the same time. तो इसको बोलते हैं straddle mill. मैं लिख दिया यहाँ पर straddle mill cutter. और इसका जो 2D व्यू है वो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको. This is the two-dimensional view. यहाँ पर कलर चेंज करना जरूरी है. Look at this. This is the workpiece. ये workpiece है. ठीक है, और ये यहाँ पर कॉमन स्पिंडल से गाइड हो रहा है कौन? स्ट्रैडल मिल कटर. तो स्ट्रैडल मिल कटर में हम लिख सकते हैं टू साइड मिल कटर्स. टू साइड मिल cutters combined together, and the workpiece obtained will have this kind of profile like this. So this is the machined portion that I'm shading and this is the machined portion. तो ये कौन सा portion है? machined portion. ठीक है, तो दो साइड मिल कटर को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? स्ट्रैडल मिल कटर. अच्छा, अब देखो ये मेरे पास एक कटर है, ये दूसरा कटर है और ये तीसरा कटर है. एक और लगा दो, चौथा कटर है. ये बहुत सारे कटर्स अगर मैंने लगा दिए, टू और मोर कटर्स, then in that case I will get a gang mill cutter. तो इसे हम कहते हैं gang mill cutter. gang mill cutter में एक साथ बहुत सारे कटर्स मशीन करेंगे. तो ये यहाँ पर एक बड़े वर्कपीस को मशीन करने के लिए काम आता है. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा gang mill cutter. तो gang mill cutter में क्या लिखेंगे? several cutters are combined together to remove material simultaneously from a large workpiece. ठीक है, several cutters are combined together to remove material simultaneously from a large workpiece. That is the explanation of gang mill cutter. Okay, so apart from this there are one milling cutter left out, that is known as form mill cutter. So what do you mean by this form mill cutter? ये मैं आपको समझाता हूँ कि form mill cutter क्या होता है ना. ये एक इच्छाधारी नागिन है. नागिन, ठीक है, इच्छाधारी नागिन का मतलब वो कोई भी रूप, एनी शेप,
क्या करेंगे LE/FM। क्यों? क्योंकि आपको कंपलसरी अलावेंस निकालने का कोई रास्ता होगा नहीं, क्योंकि आपको शेप ही नहीं पता होगा। तो L इफेक्टिव में क्या करता है ना, लेंथ ऑफ वर्कपीस प्लस जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है एडेड टेबल ट्रैवल, तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा एडेड टेबल ट्रैवल, और यही आपका कंपलसरी अलावेंस है, क्योंकि आप अलग से कंपलसरी अलावेंस निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कटर का शेप एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो क्वेश्चन में गिवन होता है क्या, एडेड टेबल ट्रैवल, तो उसको लेंथ ऑफ द वर्कपीस में ऐड कर लो और इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा। और मिलिंग स्पीड क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसको यूज कर लेना। और इसके अलावा आपको सेटअप टाइम गिवन होगा, TS सेटअप टाइम, तो जो भी आप टोटल टाइम निकालेंगे दैट विल बी नथिंग बट मशीनिंग टाइम प्लस सेटअप टाइम। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं मजेदार। क्वेश्चन में बोला है अ हेक्सागोनल prism, this question number 6, a hexagonal prism is to be made by a milling machine from a round bar of diameter 60 mm. A hexagonal is to be made, language लिख देता हूँ, language important है, is to be made by a milling machine, is to be made by a milling machine from a round bar of dia 60 mm and 100 mm length, and 100 mm length। फिर लिखा है the feed is 30 mm per minute, the feed is 30 mm per minute, and setup time is 2 minute per phase। फिर लिखा है estimate the machining time, assume added table travel is equal to 10 mm, और मशीनिंग टाइम अपने को निकालना है, मशीनिंग टाइम इज ऑप्शन ए 24 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 32 मिनट एंड ऑप्शन डी 34 मिनट। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। देखो ये आपको समझ में आ रहा है, एक मिसलेनियस प्रोफाइल कट करना है, तो फॉर्म मिल कटर का काम है ये। फॉर्म मिल कटर क्या करेगा, एक मिसलेनियस प्रोफाइल काट के देगा आपको। ठीक है, अब मशीनिंग टाइम निकालना है, तो लेंथ ऑफ द वर्कपीस चेक कर लो क्या है, लेंथ गिवन है 100 mm, तो 100 में क्या ऐड करना है, assume table travel as 10, इसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय व्हाट इज द फीड इन mm पर मिनट, सीधा 30 से डिवाइड कर दो। अच्छा, ये मशीन टाइम कितने फेज का होगा, एक फेज का। यहाँ पर क्या लिखा है, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म में कितने फेसेस होंगे, 6, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर 110 डिवाइडेड बाय 30 into 6, ये आ गया 22 मिनट। 22 मिनट इज द मशीनिंग टाइम। व्हाट इज द सेटअप टाइम, सेटअप टाइम क्वेश्चन में लिखा है 2 मिनट पर फेज, तो यहाँ पर कितने फेज है हमारे पास, 6 फेज, तो हम क्या करेंगे 2 into 6 दैट इज इक्वल टू 12 मिनट। तो नाउ
हमें देखना है सेटअप टाइम। सेटअप टाइम गिवन है 10 मिनट्स। तो यहाँ पर ऐसा बोला है क्या पर फेस पर टूथ, नहीं बोला ना, तो जो भी सेटअप टाइम है वो कंप्लीट है। तो टोटल टाइम अगर हम देखते हैं तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 120 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 130 मिनट्स एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये हो गया सेटअप टाइम 10 मिनट। ये क्या है ओवरऑल सेटअप टाइम है। और ये क्या है मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम कैसे निकाला हमने, देखो जो भी लेंथ ऑफ द हमें वर्कपीस गिवन था, देखो ये सर्कुलर प्रोफाइल है, इसमें लेंथ तो होता नहीं है। अगर गियर ब्लैंक आपको कट करना है तो गियर टीथ कटेगा कैसे, अलोंग द थिकनेस कटेगा, अलोंग द थिकनेस। तो अलोंग द थिकनेस क्या है, लेंथ 60 दैट इज द थिकनेस, और फिर 10 mm दैट इज द ओवर ट्रैवल, और वी कैन से अलाउंस और कंपलसरी अलाउंस। जो भी है मैंने पहले बोला था आपको कि एडेड टेबल ट्रैवल के रूप में गिवन होगा आपको, उसको हमने ऐड कर लिया। 70 डिवाइड बाय 35 ये एक टूथ का है फॉर वन टूथ। और अब आपको क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई करना है। 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, 60 टीथ से 60 टीथ प्रोड्यूस करना था। टोटल क्या मशीनिंग टाइम आ गया 120 मिनट्स। सो दैट इज आवर आंसर, दैट इज 130 मिनट्स। ओके नाउ लेट्स मूव अहेड। Okay, so now we are going to discuss a very interesting topic in milling, and that is indexing operation. So I'll write here indexing operation. So what happens in indexing operation? देखो जो indexing mechanism है basically it is a mechanism of division. It is a mechanism of division. मतलब कि जैसे मैंने बोला एक सर्कुलर ब्लैंक को 60 पीसेस में डिवाइड करना है या 60 इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो 60 टीथ जब आप सर्कुलर ब्लैंक में कट करेंगे तो क्या होगा, आपको इक्वल इक्वल एंगल रखना पड़ेगा हर दो टीथ के बीच में। तो ऐसा इक्वल इंटरवल कैसे क्रिएट किया जाए, कंसीडर दिस एज अ सर्कुलर ब्लैंक, और इस सर्कुलर ब्लैंक में हमने कट किया लेट्स से सम नंबर ऑफ टीथ, लेट्स से 8 टीथ, हमने 8 टीथ कट किया इसमें, ठीक है। तो हर दो टीथ के बीच का एंगल तो बराबर बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर बराबर एंगल कैसे कटेगा, क्या टूल एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करेगा या वर्कपीस स्टीयर करेगा, हमें ये समझना है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वर्कपीस इज इंडेक्स्ड, वर्कपीस इज इंडेक्स्ड एट इक्वल एंगल टू प्रोवाइड or to involve number of divisions, or to involve number of divisions on it, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, यहां पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, CPWD। C का मतलब यहां पर क्रैंक हो जाता है, P का मतलब हो जाता है प्लेट, W का मतलब हो जाता है वर्कपीस, और D का मतलब हो जाता है ड्राइविंग या ड्रिवन गियर, ठीक है। तो ये चार चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर क्रैंक को पूरा मैं लिख देता हूँ इंडेक्स क्रैंक, और ये प्लेट कौन सा हो गया, इसे मैं बोलूंगा इंडेक्स प्लेट, ठीक। तो यहाँ पर एक प्लॉट करते हैं, ये है हमारे पास क्रैंक, और क्रैंक के साथ हमारे पास है प्लेट, और प्लेट के बाद आगे वी हैव से द नंबर ऑफ teeth in the gear wheel, and then we have finally a workpiece, ठीक है। तो ये है ब्लैंक जिसको हमें रोटेट करना है, ठीक है। नाउ दिस इज द gear drive, this is the index plate, and this is the index crank। तो अब क्या हो रहा है, हमें इस ब्लैंक को बराबर बराबर डिविजन्स प्रोवाइड करवाना है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले रोटेशन होगा क्रैंक का, समझो ध्यान से। क्रैंक जो है वो रोटेट करेगा, जब क्रैंक रोटेट करेगा तो यहाँ पर गियर ड्राइव की मदद से ये वर्कपीस, ये जो ब्लैंक है ये भी रोटेट करेगा। तो क्रैंक रोटेट्स द ड्राइविंग गियर, ड्राइविंग गियर रोटेट्स driven gear, and hence workpiece is indexed or
नहीं करेगा, क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप रेवोल्यूशन होगा, देयर विल बी इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो हमें 6 डिवीजन करना है, तो हर डिवीजन के लिए वर्कपीस 60 डिग्री से रोटेट करेगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एक मैकेनिज्म जिसका नाम है डायरेक्ट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। मैं लिखा डायरेक्ट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म में क्या होने वाला है समझते हैं ध्यान से। देखो, डायरेक्ट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म में वी हैव अ क्रैंक and we have a gear drive and this is basically bevel gear, ठीक है, जिसका कि gear ratio, gear drive bevel gear है, gear ratio है 24:1। अब 24:1 gear ratio का मतलब समझ लो, 24:1 का मतलब ये है कि 24 revolution of crank will be equal to 1 revolution of वर्कपीस। ये कैसे पॉसिबल है? इंडेक्स क्रैंक जब 24 बार घूमेगा तो ड्राइविंग गियर 24 बार घूमेगा, उससे ड्रिवन गियर एक बार घूमेगा, और ड्रिवन गियर जब एक बार घूमेगा तो जाकर वर्कपीस एक बार घूमेगा। तो 24 revolution of crank is equal to 1 revolution of workpiece. It is only possible due to the gear ratio of 24:1, ठीक है। अब अगर आपको नंबर ऑफ डिवीजन काटना है, लेट इट बी n नंबर ऑफ डिवीजंस, n नंबर ऑफ डिवीजंस हमें चाहिए, तो वर्कपीस को एक बार कंप्लीट घूमना पड़ेगा। मतलब आप इसको उल्टा पढ़ लो कि अगर एक रेवोल्यूशन वर्कपीस का हो गया तो जो भी नंबर ऑफ डिवीजन आपको कट करना है वो कट जाएगा। तो 24 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक में वर्कपीस एक बार घूमेगा और कितने डिवीजंस मिल जाएंगे आपको? n डिवीजंस मिल जाएंगे। तो अगर एक डिवीजन कट करना हो तो क्रैंक को कितनी बारी घुमाना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर काफी सिंपल है, 24/n रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है डायरेक्ट इंडेक्सिंग में। दोबारा समझ लो इस चीज को कि अगर क्रैंक जो है वो अगर 24 बार घूमता है, 24 रेवोल्यूशन, क्रैंक का 24 रेवोल्यूशन, तो उससे जो हमारा गियर व्हील है, जो गियर ड्राइव है, वो रेशियो क्या है? 24:1। तो वर्कपीस एक बार घूमेगा, वर्कपीस एक बार घूमेगा, सोर्स क्या है? सोर्स है क्रैंक, और आउटपुट कहां मिलेगा? वर्कपीस में, ठीक है। तो क्रैंक जब 24 बार घूम जाएगा, और सिंस 24:1 का गियर रेशियो है, तो वर्कपीस कितनी बार घूमेगा? वर्कपीस एक बार घूमेगा। तो 24 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक विल रिजल्ट इनटू 1 रेवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस। और अगर वर्कपीस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है तो जो भी नंबर ऑफ डिवीजन आपको चाहिए n, वो आपको मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स से कि 6 डिवीजन अपने को चाहिए। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ डिवीजन टू बी 6। तो अगर 6 डिवीजन अपने को चाहिए, तो अब मैं पूछूंगा क्रैंक रेवोल्यूशन कितना फॉर 1 डिवीजन, ये कैसे निकालेंगे आप? तो 6 डिवीजन के लिए क्रैंक को कितनी बार घूमना पड़ रहा है? तो आप बोलेंगे 6 डिवीजन के लिए क्रैंक घूमेगा 24 बार, 24 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। तो 1 डिवीजन के लिए क्रैंक कितनी बार घूमेगा? 6 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या लिखा है 1 डिवीजन के लिए? 24/n। और ये कौन से इंडेक्सिंग के बारे में बात हो रही है? डायरेक्ट इंडेक्सिंग के बारे में बात हो रही है। तो अगर एक रेवोल्यूशन अगर आपको करना है तो आप लिखेंगे 24/6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो 4 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक विल बी रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी डिवीजन? फॉर 1 डिवीजन, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, let us consider n to be equal to 8 in direct indexing mechanism। तो 8 डिवीजन के लिए वर्कपीस कितनी बार घूमेगा? एक बार, 1 वर्कपीस रेवोल्यूशन। एक वर्कपीस रेवोल्यूशन के लिए क्रैंक को कितनी बार घूमना पड़ेगा? 24 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में गियर रेशियो क्या है? 24:1। तो 8 डिवीजन के लिए 24 रेवोल्यूशन, तो 1 डिवीजन के लिए कितना होगा? 24/8, दैट इज इक्वल टू 3 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, ठीक है। तो 3 रेवोल्यूशन क्रैंक का होगा, तब जाकर एक डिवीजन कट जाएगा। और अगर आपको एक डिवीजन कट करना आता है तो आपको 8 डिवीजन कट करना
करना आता होगा, सेम प्रोसेस को 8 टाइम्स रिपीट कर दो। अच्छा, अब एक और एग्जांपल, n को ले लो 12 डायरेक्ट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म में, तो फॉर वन डिवीजन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक? तो आप बोलेंगे सर 24/n फॉर्मूला होता है, 24/12 कर दो, 2 रेवोल्यूशन चाहिए होगा कितने डिवीजन के लिए? एक डिवीजन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से n = 12 के हिसाब से। अच्छा, अब आपको जो मैंने 3 एग्जांपल्स कराए वो देख लो कौन कौन से हैं। पहला एग्जांपल है, मैंने बोला n = 6, दूसरे में बोला n = 8, तीसरे में बोला n = 12। ये जो नंबर्स हैं 6, 8, 12 दे आर फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर हो जो 24 का फैक्टर नहीं है तो जाकर मामला फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा समझो, मैंने बोला n = 10, ठीक है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। सो आप लिखेंगे फॉर वन डिवीजन ऑन वर्कपीस इंडेक्स क्रैंक रेवोल्यूशन = 24/10। कोई भी इसको 2.4 नहीं लिखेगा, इसको लिखा जाएगा 24/10। 24/10 का मतलब क्या है कि 2 बार तो पूरा पूरा घूमेगा, 2 फुल रेवोल्यूशन followed by 4/10 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो 2 बार तो पूरा पूरा घूमेगा कौन? वर्कपीस, सॉरी क्रैंक। और तीसरा जो रेवोल्यूशन है ना दैट विल बी 4/10, मतलब फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन है। अभी तक हमने इंडेक्स प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया, अब जाकर इंडेक्स प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, जो इंडेक्स प्लेट है उसका काम होता है क्रैंक को फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन से घुमा देना। सो इंडेक्स प्लेट इज अ सर्कुलर डिस्क कैरीज n नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, ये इस तरीके से, ये हमारे पास एक इंडेक्स प्लेट है। मान लो इसके आउटर होल में 20 होल्स हैं, इसके इनर सर्कल में 18 होल्स हैं और इसके इनर मोस्ट सर्कल में 16 होल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक इंडेक्स प्लेट है तो उस इंडेक्स प्लेट का यूज क्या है? इंडेक्स प्लेट का यहाँ पर यूज है टू रोटेट क्रैंक बाय फ्रैक्शन, टू रोटेट क्रैंक बाय फ्रैक्शन और टू प्रोवाइड फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन टू इंडेक्स क्रैंक, ठीक है। तो 4/10 रेवोल्यूशन के लिए अब हमें प्लेट की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे? मान लो कि एक हमारे पास सर्कल होता जिसमें कि 10 होल्स होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हमारे पास ऐसा सर्कल है जिसमें कि कितने होल्स हैं? ऑल टुगेदर 10 होल्स हैं। अगर 10 होल वाले सर्कल में हमने 1 2 3 4 होल ऑक्यूपाई कर लिया, तो आप बोलेंगे ना कि सर 4/10 ऑफ अ रेवोल्यूशन हो गया। अगर आपने एक सर्कुलर प्रोफाइल में जिसमें कि 10 डिविजन्स बने हुए हैं, होल्स बेसिकली क्या है? डिविजन्स हैं। अगर आपने 4 हिस्सा कवर कर लिया 10 हिस्सों में से, तो हम बोलेंगे ना कि 4/10 रेवोल्यूशन हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई 10 होल वाला सर्कल नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास 20 होल वाला सर्कल है, 18 होल वाला सर्कल है, 16 होल वाला सर्कल। यहाँ मैंने एग्जांपल रखा है। तो क्या करेंगे, जो लिखा है ना 2 4/10, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और आ जाएगा 2 8/20। अब देखो 4/10 या 8/20, मैथमेटिकली बात तो सेम ही है। तो 8/20 ये मिल सकता है हमें इस इंडेक्स प्लेट में। इस इंडेक्स प्लेट में हमें 8/20 वाला फ्रैक्शन मिल सकता है। कैसे? हम लिखेंगे फॉर वन डिवीजन ऑन वर्कपीस इंडेक्स क्रैंक completes 2 full revolution followed by 8 holes movement in 20 hole circle plate।
ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन टू इंडेक्स क्रैंक। इंडेक्स क्रैंक को फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम इंडेक्स प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हमने इंडेक्स प्लेट का इस्तेमाल किया एंड वी ऑब्टेन्ड 1 डिवीजन, और अगर आपको एक डिवीजन करना आता है तो आपको 10 डिवीजन भी करना आता ही होगा। सो दिस वाज द केस फॉर n इक्वल टू 10। अब जाकर हमने इंडेक्स प्लेट का इस्तेमाल किया। अब एक और एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा यहाँ पर n इक्वल टू 14, मतलब 14 डिवीजन अपने को चाहिए। और कौन सा मैकेनिज्म है? डायरेक्ट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म है। यहाँ मेरे पास इंडेक्स प्लेट है, इंडेक्स प्लेट 1 दैट इज कैरिंग 15 16 17 18 19 होल्स, ठीक है। एक है इंडेक्स प्लेट 2 दैट कैरीज 20 21 22 23 एंड 24 होल्स, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द अबव प्लेट कैन बी यूज्ड। ऊपर में जो दो प्लेट है में से किसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो आप ये ध्यान से देखो कि 14 डिविजन्स हैं। सबसे पहले बात होगी एक डिवीजन की, तो मैं लिखूंगा फॉर 1 डिवीजन इंडेक्स क्रैंक रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 24 बाई n। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे? 24 बाई 14। 24 बाई 14 को क्या लिख सकते हैं हम? 24 बाई 14 को हम लिख सकते हैं 1 10 बाई 14। अच्छा, क्या आपके पास 14 होल सर्कल है क्या? 14 होल सर्कल होता तो हम उसमें से 10 होल ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास 10 बाई 14 के लिए कोई भी होल सर्कल नहीं है। हमें जनरली ना ये डिनोमिनेटर को चेक करना होता है, चेक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को चेक करना होता है। तो देखो 14 कहीं भी दिख रहा है? 14 इस पूरे होल्स में कहीं भी 14 दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 1 10 बाई 14 को आप ऐसे लिखो 1 5 बाई 7, ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर को चेक करो, चेक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? 7। 7 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जो कि इस पूरे इंडेक्स प्लेट 1 और इंडेक्स प्लेट 2 में अवेलेबल हो? तो हम चेक करते हैं। 7 मतलब 7 अवेलेबल नहीं है, 7 2 14 वो भी अवेलेबल नहीं है, 7 3 21 21 इज अवेलेबल। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड मैथमेटिकली द इक्वेशन विल रिमेन द सेम। So 21 was available there. So what we will do is 115 by 21 ये लिखेंगे, और अब स्टाइल में लिखेंगे for 1 division on workpiece index crank completes 1 full revolution followed by 15 holes in 21 hole circle from plate 2। तो हमने प्लेट 2 का इस्तेमाल किया और हमने ये पूरा रेवोल्यूशन करवा दिया। किसको? क्रैंक को। ये कितने डिवीजन के लिए था? ये एक डिवीजन के लिए था। तो हमेशा सवाल जो है ना वो एक ही डिवीजन के लिए आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट इंडेक्सिंग का क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं सिंपल इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं? टू डिवाइड अ सर्कुलर पीस इनटू इक्वल डिविजन्स, ठीक है। तो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल हम कर रहे हैं टू डिवाइड अ सर्कुलर प्रोफाइल इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स। और इसका एग्जांपल क्या है? रैचेट टीथ कट करना, गियर टीथ कट करना। सिंपल इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग में क्या होगा? हम इस्तेमाल करेंगे वर्म गियर्स और इसका गियर रेशियो होगा 40:1, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 40 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक will be required for 1 revolution of workpiece। और अगर वर्कपीस ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, इसका मतलब whatever is the number of division you require that will be obtained। तो 40 revolution of crank is for how many divisions? n divisions। so for 1 division we will have 40 by n revolution of crank। ये हो गया सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके भी आप एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है
that one of the index plates of milling machine has the following hole circles. तो यहाँ पर एक index plate है, इसमें hole circles हैं 15, 16, 17, 18, 19 and 20 hole circles. ये available है. और बोला गया gear wheel of 34 teeth. A gear wheel of 34 teeth is to be milled by simple indexing method. तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है by simple indexing method. फिर लिखा है to machine each tooth, the index crank to machine each tooth, index crank is rotated through. ठीक है, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए लिखा है 17 होल्स, 17